Hello friends, this is Mainak from Civil Center and I welcome all of you back to our channel. So friends, today we have a very special guest with us, engineer Nikesh Ganesh Rathore. So before starting our interactive session, let us briefly introduce him. So basically, he has completed his schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya and then he has done his BE, Bachelor of Engineering in Civil Engineering, and then he has done his MTech in Structural Engineering. He is also a batch topper in Structural Engineering during his MTech, and he was also awarded with Vice Chancellor's Silver Medal. Besides these achievements, he also has published 4 technical papers in national conferences and journals and 2 papers in international journals. He has over 4 years experience in the teaching field as well as an educator. He is currently working as a structural consultant. We'll discuss his other achievements with due course of time, but first let us welcome him. I want to welcome you to Civil Center Studio. Thank you so much for this warm welcome. I am really thankful for you guys for bringing me and giving me this platform to speak something about you guys and to share my some of my glimpses and experiences. Thank you so much for this invitation. It's our pleasure, sir, for that you have accepted our invitation and come for this interactive session. So let us start, shall we? Sure. Okay. So we'll start with a very basic question. Why have you chosen civil engineering as a field during your bachelor's? Well, thank you for asking this question. Most of the time I face this question, but very few know what civil is actually. Civil, I guess, is a very motivating word. If we split the word in three sections, then we will find it as see, I will. Hence, I find it as a very encouraging branch, and hence I chose this. And one of the most important reasons for being me as a civil engineer, I am the third civil engineer of my family. The credit goes to my grandfather, Shri Gokul Lohar, followed by his son, Yogesh Chauhan, and followed by me. As a result of which, I am a third generation engineer, and as you said during my introduction that I am also an educator, the credit goes to my paternal family. My father's father was retired headmaster, late Sri Nathubai Lohar, followed by my father and uncle who also started a career as a teacher and as an educator. Presently, my uncle, Mr. Dinesh Rathore, is a teacher PGT teacher in JNV. So that is the main reason I got in JNV family in 2004 or 6. So it was a great session in JNV Washim. And last but not least, I am also the third generation of teacher. As a result, I am a good engineer as well as also a good teacher. So you are आप actually chronology follow कर रहे हैं. So it's in your genes that all are civil engineers, all are related to the teaching profession. It's very good to know about this. So my next question will be, बहुत लोग BTech करते हैं, BE करते हैं. Everyone does their BTechs, BE. Then after your BE, why did you go for MTech? My first question. And the second question is, why did you choose structural engineering as your branch? Well, सिविल तो मुझे पहले से ही लेना ही था. जब सिविल इंजीनियर ख़त्म हुआ 2013 में, तब सोचा किस में एमटेक करें. एमटेक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी. आई लिस्टेड देयर आर 16 डिफरेंट ब्रांचेस वेयर इन वी कैन डू एक्सेल इन सिविल इंजीनियरिंग. During the course of my BE, I realized that I am having keen interest in structures. मेरे बहुत सारे structures को बहुत ज़्यादा मैंने fascinate किया है structures ने मुझे, और इसलिए सोचा structural engineering थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो थोड़ा सर्वे किया, जाना कि structures होते क्या है, and at the end I got interested and I appeared to different exams, as a result of which I did my MTech from KIIT University. And I am also thankful for mentioning during my introduction that I was awarded in as a MTech batch topper. I was awarded with Vice Chancellor Silver Medal. Reason being, I scored highest CGPA of my branch, that is 9.19. तो अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर में मुझे पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और यहाँ पे फैकल्टी भी कुछ ऐसे मिले जैसे कि प्रोफेसर जेना, प्रोफेसर शाह, प्रोफेसर महाराणा, प्रोफेसर मोहपात्रा और बहुत सारे, जिनके बहुत ज़्यादा गाइडेंस के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ.
और बहुत सारे, और मेरे एमटेक के जो गाइड थे जिसमें जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ सेकेंड ईयर। तो सर आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? एमटेक में जब सेकेंड ईयर का हमारा प्रोजेक्ट का सेशन था, थीसिस बनाना था, तब प्रोजेक्ट किस पे करूँ ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, क्योंकि स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट था तो स्ट्रक्चर में करूँ ऐसा लग रहा था। पर बाद में रियलाइज़ हुआ पेटेंट नाम का कोई वर्ड होता है, तो पेटेंट इस नाम का थोड़ा सर्चिंग किया, फिर ये भी पता चला कि किट में नैनो सेंसर लैब है जहाँ पे डॉक्टर पाराशर सर बहुत डिवोटेड है फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। एक बार उनसे मैंने बातचीत थी, मीटिंग किया, तो ऑफिशियली आई वॉज अलॉटेड विद प्रोफेसर महाराणा एज माई गाइड। आई रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वांट टू डू माई प्रोजेक्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी, एज द रिजल्ट ऑफ विच डॉक्टर पाराशर केम इन टू पिक्चर एज अ को गाइड। एंड रियली पाराशर सर और महाराणा सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइड किया, और इसीलिए ये मेडल जो मुझे मिला है सब फैकल्टी का, और स्पेशली इन 2 फैकल्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उसमें। पेपर राइटिंग का स्किल जो मुझ में आया ड्यूरिंग एमटेक, उसका पूरा क्रेडिट मैं डॉक्टर शाह को दूंगा, क्योंकि उनके साथ ही मेरा सबसे पहला पेपर मैंने लिखा है, जो कि इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा आपको, डायाग्रेड स्ट्रक्चर्स का। शायद आपने पढ़ा भी होगा वो, एक बार आपको मैंने दिया था। हाँ, पढ़ा भी हूँ, और आई एम लकी दैट आई वर्कड विद यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब आप जो बोले वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि और टीचर्स आर और फाउंडेशन। टीचर्स नहीं होते तो, टीचर्स हमको गाइड नहीं करते सही से, तो हम लोग जहाँ भी हैं यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो गुरु ही सब कुछ है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो मतलब ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स का डाउट है कि इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ देयर अ लैक ऑफ जॉब्स? क्योंकि मतलब अभी जो लोग मतलब बीटेक परस्यू कर रहे हैं, दे वांट टू ग्रो इन डिफरेंट प्रोफेशंस, दे वांट टू गो इन डिफरेंट ब्रांचेस। सिविल का आपका स्टूडेंट का रेशियो कम हो रहा है हर कॉलेज में, जो एडमिशन हो रहा है सिविल में कम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दे थिंक दैट सिविल में आपका जॉब्स नहीं है सफिशिएंट। तो इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में आपका क्या ओपिनियन है? वेल, आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है, और ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ा रहा था कॉलेजेस में तब मैंने भी फेस किया इसको। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा दैट ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, और शेल्टर प्रोवाइड करने वाले सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ नेवर एंडिंग ब्रांच। रही बात जॉब्स की, सबसे पहली अभी तो प्रॉब्लम ऐसा है, इतने सारे इंजीनियर्स ऑल ओवर द ग्लोब क्रिएट हो रहे हैं, पर कितने लोग काबिल है? अब काबिल वर्ड से आपको एक बात बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने रणछोड़ दास श्यामल दास चाचाड़ी का नाम सुना ही होगा, अगर याद नहीं होगा तो बता दूं। आज जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आज आमिर खान जी का बर्थडे है, और मैं उनको याद करना चाहूँगा। उनके 3 इडियट्स मूवी का जो सबसे फेमस डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झकमार के पीछे आएगी। तो काबिल इस वर्ड का मतलब ही लोग समझ नहीं पाते। जस्ट पासिंग एग्जाम इज नॉट काबिलियत। आपको अगर इंटरव्यू में सिंपल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको आंसर आ गया, दैट डज नॉट मीन यू आर कैपेबल। रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन का आंसर सर्च करने की कोशिश की, और मुझे रियलाइज हुआ दैट सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स तो ऑल ओवर ग्लोब है, बट द इंजीनियर्स व्हाट दे रिक्वायर शुड बी कैपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग a structure in AutoCAD or any related software, any CAD drafting software, followed by its design in any design software, and followed by calculation of the estimate bill of quantities. तो ये सब अगर एक इंजीनियर को आ गया, एक सिविल इंजीनियर को आ गया, तो डेफिनेटली नो जॉब विल बी वैकेंट। ये अब थोड़ा इंजीनियर्स ने ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि कोई बेरोजगार नहीं होगा अगर हिंदी में बात करें तो। सब अभी तो फिलहाल यही वर्ड ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। बी का भी आजकल फुल फॉर्म चेंज होते जा रहा है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो हम जानते हैं, पर आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है बेरोजगार इंजीनियर्स, जो कि गलत बोला जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, वी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग आवर स्किल्स। सिविल इंजीनियरिंग में इतने सारे स्किल्स हैं, आपका एस्टिमेशन है, सर्वे है, आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, साइट इंजीनियरिंग स्किल्स हैं। तो वो सब स्किल्स अगर हम लोग मतलब फॉलो करते हैं प्रॉपरली, अगर हम लोग उसमें ट्रेन होते हैं, डेफिनेटली जॉब का कोई कमी नहीं है हमारे पास में। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा दैट आई गॉट टू नो दैट ड्यूरिंग योर एमटेक यू पार्टिसिपेटेड इन ए कॉम्पिटिशन इंस्टैक। तो उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसमें थोड़ा सा उसका आंसर भी है। मैं बताना चाहूँगा कि 2015-16 में जब मेरा एमटेक का सेकंड ईयर चल रहा था, डॉक्टर शाह से मुझे बात पता चली कि देयर इज़ अ नेशनल लेवल स्टील डिज़ाइन कंपटीशन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंसडैक। इस कंपटीशन में हमारे बैच में से मैं और एक मेरी क्लासमेट, हम दोनों ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, एंड वी वर द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ किट यूनिवर्सिटी। फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द गाइडेंस ऑफ द सर, हमारे दोनों के ग्रुप सिलेक्ट हुए थे एज टॉप 14, एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द जूरी मेंबर्स।
एंड लास्ट डे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला. द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जिंदाल स्टील मिस्टर सज्जन जिंदाल, इनसे हमारा रूबरू हुआ था. बिकॉज फेलिसिटेशन का जो प्रोग्राम था वो वहाँ पे प्रेजेंट थे. हमारा रैंक तो नहीं आया, पर रीचिंग टू द टॉप 14 एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस. उनसे ऐसे मतलब व्यक्तित्व से मिलना, उनसे मतलब उनके साथ बात करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो. और इनफैक्ट जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आया था हमारा ड्यूरिंग द फेलिसिटेशन प्रोग्राम, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू जिंदाल सर ऑल्सो. उन्होंने आंसर भी दिया. मैंने क्वेश्चन बड़ा ही सरल पूछा था, सर व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द इंजीनियर्स, प्रेजेंट इंजीनियर्स. तो उन्होंने आंसर बड़ा ही सरल दिया था, जस्ट फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर स्टडीज, डेवलप योर सेल्फ. ये उनका मेन 3 लाइन्स थी. उनका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे याद नहीं, पर ये 3 लाइन्स मुझे आज भी याद है. पर ये कंपटीशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको हुआ, डिज़ाइन सीखने को मिला. मोर ओवर आपके जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है मिस्टर साजल वर्मा, इनका और मेरा काफ़ी अच्छा क्लोज रिलेशन बना उसी कंपटीशन के वक्त. और रिसेंटली आपके ही ग्रुप, आपके ही अंडर, आपके ट्रेनिंग के अंडर ही एक ग्रुप भी जीता है ना, 2nd रैंक. आपको मैं बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए. काफ़ी अच्छा लगा मुझे उस बात के लिए. थैंक यू सो मच एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्टैक कंपटीशन. तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब एक आदमी को सक्सेसफुल बनाते हैं. ये सब चॉइसेस हैं कि जब मतलब कोई बच्चा नहीं था समर वेकेशन में, तब मतलब एक टीचर के गाइडेंस में, एक सर के गाइडेंस में, वो सर जैसे बोलेंगे वैसे करके, मेहनत करके एक कंपटीशन का तैयारी करना, डिज़ाइन कंपटीशन का तैयारी करना, फिर उसमें जाके पार्टिसिपेट करना, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे अचीवमेंट है और बहुत बड़ा आपका डेडिकेशन का सवाल है जो आपका कोई आदमी को आगे जाके सक्सेसफुल बनाते हैं. तो ये सब एक्सपीरियंसेस हम लोग सीख सकते हैं. तो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन सिविल सेंटर? आप आए यहाँ पे, देखे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सिविल सेंटर काफ़ी अच्छा मुझे लगा. ये तो बहुत छोटा लाइन बोल दिया मैंने. असल में हुआ ऐसा, मैं आया था किसी और काम के लिए, पर जैसे कि बताया आपको थोड़ी देर पहले कि साजल वर्मा मेरे अच्छे दोस्त है. उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि एक बार आप सिविल सेंटर जाके आइए. और आपसे भी मेरा काफ़ी अच्छा कांटेक्ट है. एमटेक के 2nd ईयर में मेरा प्रोजेक्ट में आपने बहुत वैल्यूएबल मेरे को मदद किया, बिकॉज आपका बीटेक का प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया था. तो आप दोनों से मुझे मुलाकात करना ही था. जब अब आपके ऑफिस में जब मैं पहली बार आया, फर्स्ट टाइम मुझे इतना यूथ ऑफिस दिखा. वरना ऐसा बहुत ऑफिस में होता है जिनके बाल पके होते हैं. आई एम सॉरी अगर मेरा ये लाइन आपको अच्छा ना लगा हो तो, बट इज़ अ रियलिटी. यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप है काफ़ी अच्छा लगा. जिस एम के साथ आपने इस स्टार्टअप को खोला है, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल. और मैं स्पेशल थैंक्स बताना चाहूँगा इंजीनियर संजय सिंह का, इंजीनियर राजा बाबू का, आर्किटेक्ट रंजिता मैडम का, और ऑल्सो इंजीनियर प्रतीक्षा मैडम का, जिन्होंने काफ़ी कुछ मुझे समझाया कि सर हम सिविल सेंटर में क्या क्या करते हैं, क्या है हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है. आप लोग टेक्ला का ट्रेनिंग देते हो, स्टार्ट प्रो का ट्रेनिंग देते हो स्टूडेंट्स को, राइट फ्रॉम, अगर उसको कुछ आ नहीं रहा होगा थ्योरी, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली विल ट्रेन यू एंड विल टीच यू एंड विल मेक यू कैपेबल इनफ टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ टुडे. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका आइडिया. और कोशिश करेंगे कि और स्टूडेंट्स को ये मैसेज कितना फॉरवर्ड हो सके. मैं तो एक ही कहना चाहूँगा आपके सिविल सेंटर के बारे में, इट इज़ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स टू डेवलप देयर ओन करिकुलम. करिकुलम का कहना का मतलब ये है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, काबिल बनो. दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज टू inculcate good qualities of civil engineer in yourself. So please try to be a part of this show and you'll definitely get success in your life. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन ऑन दिस. एंड उसी के साथ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम लोग एक अभी सिविल सेंटर स्टूडेंट क्लब लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग व्यूअर्स को भी बताए हैं कि वी ट्रेन सिविल इंजीनियर्स फॉर मेकिंग देम इंडस्ट्री रेडी एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस. तो उसके बारे में आपको बताया, तो उसके ऊपर आपका क्या आइडिया है या क्या ओपिनियन है? ओपिनियन मेरा ऐसा है कि अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो पैसा इज द सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट हैव द एटीट्यूड टू लर्न समथिंग न्यू. कैसा है, बीई सिविल हो जाने के बाद या एमटेक स्ट्रक्चर या किसी में भी आपका मास्टर्स हो जाने के बाद यू आर जस्ट कॉल्ड एज एन इंजीनियर, बट प्रैक्टिकली वेन एवर यू गो ऑन साइट इंजीनियरिंग थोड़ी चेंज हो जाती है. तो वहाँ पर अप्लाई करते हुए हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट आ जाती है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको फेस नहीं करना है फ्यूचर में, सो इट्स बेटर टू लर्न समथिंग न्यू. And as I mentioned earlier also, and I would like to mention it now also, Civil Center gives you that platform. In fact, मैं भी नागपुर से आया हूँ. नागपुर में मेरा खुद का भी एक फर्म है जहाँ पे हम भी इसी कुछ तरीके का ट्रेनिंग ऑफर करते हैं. तो इफ़ यू गाइज रियली वांट टू ज्वाइन, प्लीज़ ज्वाइन विच एवर. हम इंसिस्ट नहीं करते आओ और ज्वाइन करो.
हम बस ये कह रहे हैं कि मेक योर सेल्फ कैपेबल सो दैट इस कंपटीशन में आप आपका प्लेस कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर सको। तो आपका ओपिनियन बहुत अच्छा था एंड हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत काम आएंगे आपका ओपिनियंस। एंड सो मूविंग ऑन, आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। टेल अस अबाउट योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है कुशल अभियंता सर्विसेज, और वहाँ पे मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम देख रहा हूँ। ये फर्म पिछले साल से खोला है और हमारा इंटेंट इस फर्म के पीछे यही था, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि काबिल बनो। पर काबिल बने तो बने कैसे, क्वेश्चन वो था। तो हमारा ये जो फर्म है हमने इसी के बेस पे खड़ा किया है, और यहाँ पे हम सारे इंजीनियर्स को ऑन साइट ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि बहुत बार हमको पता नहीं होता है कि लेआउटिंग मार्क कैसे करते हैं, कॉलम कैसे कास्ट किया जाता है, कास्ट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। कोडल प्रोविजंस हम क्लास में पढ़ लेते हैं, पर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास में पढ़ाई जाती है पर हम समझ नहीं पाते हैं, वो साइड में प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने कुशल की शुरुआत की है, और भी क्या क्या हो सकता है आगे वो तो वो टाइम ही बताएगा। अभी तो हम बहुत कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमिटमेंट अगर फॉलो नहीं है तो आपको ही ज़्यादा हमसे बुरा लगेगा और उससे ज़्यादा हमको बुरा लगेगा। इसलिए कमिटमेंट्स फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे, पर एक ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे यहाँ पे आए तो डेफिनेटली विल नॉट लेट यू डाउन, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक यू कैपेबल इनफ टू सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो मेरे साथ और मेरे कुछ दोस्त भी जुड़े इस कार्यक्रम में, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ, स्पेशली पवन, दीपक एंड मोनी शेख, नीतेश जिपकाटे और कई सारे। देखते हैं अभी और आगे क्या क्या होता है हमारे कुशल अभियंता सर्विसेज में। डेफिनेटली जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना मतलब आपका जो गोल है, आपका इतना मतलब अच्छा गोल है, तो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस अचीव करेंगे। तो हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिफोर रैपिंग इट अप, आई वांट टू आस्क यू अ फाइनल क्वेश्चन which will be one of the message to our viewers, कि आप सब बडिंग सिविल इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? which message, what message you want to give to all budding civil engineers who are watching this video and who will watch this video later? एक सिंपल सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बहुत आम तौर पे हम कभी भी जब डिफ़िकल्ट में फंस जाते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन एक ही आता है, और वो बहुत देर तक चलता रहता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये पूछो, अब मैं इसको कैसे डील करूँ। अगर ये छोटा सा एटीट्यूड में चेंज आ गया तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो सकता है। हाउ टू सॉल्व दिस, थिंक अबाउट दैट इंस्टेड ऑफ व्हाई दिस प्रॉब्लम केम टू माई लाइफ। It will definitely change the entire perception about the problem, whatever you are facing it to. So I wish all the best luck for all the viewers. I hope you will get a good message from this video, and thank you once again to the Civil Center for giving this platform to share my ideas and views about engineering, whatever we have discussed on. Thank you so much. Thank you, and I want to thank Nikesh sir for coming to our studio and interacting with our viewers. And definitely our viewers will like it. So if you like this video, definitely give a thumbs up and see you. Bye. Bye. Thank you.